رب 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 کرتے رہنا رب نہیں ملنے والا، رب 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 کرتے رہنا رب نہیں ملنے والا، رب 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 کرتے رہنا رب نہیں ملنے والا، جب تک تیرا دینا ہو جائے گا رسول والا مدینے والا سوڑا، مدینے والا سوڑا، مدینے والا سوڑا، مدینے والا سوڑا، رسول اعظم سوڑا، رسول اعظم سوڑا، رسول اعظم سوڑا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحیینہ حیاتا طیبہ ولنجزینہم اجرہم بأحسن ما كانوا يعملون۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے جس آیت نور کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے اس کے حوالے سے کچھ گفتگو سے پیشتر آئیے سب سے پہلے اپنی اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ علیہ التحیۃ و ثنا کی بارگاہ ناز میں اپنی محبتوں کا خراج پیش کر لیں اور بآواز بلند درود پاک پڑھیں۔ اللهم صل على سيدنا شفيعنا نبينا مولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما دائما عليك سيدي يا رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، رب کائنات فرماتا ہے من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحیینہ حیاتا طیبہ، کہ جس نے نیک عمل کیا چاہے وہ مرد ہو چاہے عورت، بس شرط یہ ہے کہ وہ مومن ہو، تو اللہ رب العزت فرماتا ہے فلنحیینہ حیاتا طیبہ، ہم اسے ایک اچھی زندگی دیں گے، ایک ستھری زندگی ہم اسے عطا کریں گے۔ اچھی زندگی کے لیے ہر شخص کوشاں ہوتا ہے، ہر بندے کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ دنیا میں اچھی زندگی گزارے، اور اس اچھی زندگی کے لیے وہ اپنی طاقت پر کوششیں بھی کرتا ہے، ہر تک و دو کرتا ہے، ہر آفتیں اور مصیبتیں برداشت کرتا ہے، دھوپ میں جلنا ہو تو جلتا ہے، بارش میں بھیگنا ہو تو بھیگتا ہے، ٹھنڈ کی یک بستگی اگر اسے برداشت کرنی پڑتی ہے تو وہ بھی برداشت کرتا ہے، وہ ہر جتن کرتا ہے، چھلانگیں لگاتا ہے، اور اگر اسے کچھ بھی نہیں ملتا ہے، کہیں سے کچھ ہاتھ نہیں آتا ہے تو رشوت ستانی، سود خوری، بدعنوانی اور دوسرے غیر شرعی کاموں سے وہ دولت حاصل کر کے اپنی زندگی کو اچھی بنانا چاہتا ہے، اور ہر بندے کی یہ خواہش ہے اور ہونی بھی چاہیے کہ اس کی زندگی اچھی ہو۔ لیکن ہمارا جو تصور بدھا ہوا ہے اچھی زندگی کے حوالے سے وہ کچھ اور ہے، اور قرآن نے جو اچھی زندگی کا تصور دیا ہے وہ کچھ اور ہے۔ ہم نے جو اچھی زندگی کا تصور باندھ رکھا ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے پاس دولت کی ریل پیل ہو، ہمارے پاس گاڑی ہو، گاڑی بنگلے ہوں، فلیٹ ہوں، ایک چلتا ہوا کاروبار ہو، سیلوٹ کرنے کے لیے چاکر ہوں، آگے پیچھے چلنے والے نوکر ہوں، اور دنیا کی ساری آشائشیں اس کے پاس ہوں، تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس کی زندگی بڑی اچھی ہے۔ ہمارا یہ تصور بھی ہے، یہ مزاج بھی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب کسی دولت مند انسان کو ہم پورے آشائش کے ساتھ دیکھتے ہیں تو ہمارے دل میں ایک آرزو مچلتی ہے کہ اس کی زندگی بڑی اچھی ہے، کاش کہ میری زندگی بھی ویسی ہو جائے۔ لیکن یہ قرآنی تصور کے خلاف ہے۔ اسلام نے جو اچھی اور ستھری زندگی کا تصور دیا ہے اس تصور کے یہ خلاف ہے۔ اسلام نے اور قرآن نے جو اچھی زندگی کا تصور دیا ہے وہ رب کائنات
फरमाता है मन अमिला सालिहन मिन ज़करिन औ उन्सा व हुवा मुमिनुन फलनुहयियन्नहु हयातन तय्यबा। जो अच्छा काम करेगा, जो नेक अमल करेगा, उसे अच्छी जिंदगी अता की जाएगी, और जो अच्छा काम नहीं करेगा उसकी जिंदगी अच्छी नहीं होगी। हमने देखा है लोग आते हैं दुनिया में, दुनिया से चले जाते हैं, माल कमाते हैं, दौलत कमाते हैं, दुनिया से चले जाते हैं, मनोटनों मिट्टी के नीचे दब जाते हैं। उसके खानदान, उसके पसमानदगान चंद दिन उसे याद रखते हैं, उसकी याद में अफसुर्दा रहते हैं, और फिर उसके बाद हफ्ता नहीं गुजरता है कि फिर वही चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाती है, वही महफिलें सजती हैं, वही खान पान, वही महफिलों में ठहाके, और वही जिंदगी पुरानी डगर के ऊपर आ जाया करती है। मरने वाले और माल कमा करके छोड़ने वाले को हम भूल जाते हैं। महीना, 2 महीना, साल गुजरता है, हम उसके चेहरे के खत खाल को भूल जाते हैं। कब्रों का उसका निशान नहीं मिटता है, न उसका नाम है, न उसका काम है। वो फिर भूली बिसरी जिंदगी उसकी हो जाया करती है। ये अच्छी जिंदगी नहीं है। अच्छी जिंदगी वो है जो कुरान ने कहा है कि अच्छा अमल जो करेगा उसे अच्छी जिंदगी अता की जाएगी। आकाए कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले आप दुनिया की तारीख उठा करके पढ़ें कि दुनिया में लोग आते हैं, चले जाते हैं। इस दुनिया में किसी को याद करने की इतनी फुर्सत नहीं है। दुनिया ने हमारे हाथों में इतना काम दे रखा है कि हमें उस काम से फुर्सत ही नहीं मिलती है कि किसी की याद मना करके हम महफिल सजा करके बैठे या इस हाले सवाब के लिए हम बैठे। दुनिया ने हमारे हाथों में इतना काम दे दिया है कि हमें अपनों को याद करने के लिए वक्त निकालना मुश्किल हो गया है। आप देखें आले सासान ने इस दुनिया के ऊपर 1-2 नहीं बल्कि 3150 साल तक हुकूमत किया है, यानी 3164 साल तक आले सासान ने ईरान के ऊपर हुकूमत किया है। एक ही खानदान के 150 अफराद बादशाह यके बाद दीगरे होते रहे, लेकिन आज अगर इस पूरी मस्जिद में मैं किसी से पूछूं कि उस आले सासान के किसी एक बादशाह का नाम बता दे तो शायद कोई ऐसा हो जो किसी एक बादशाह का नाम बता दे। 3150 साल तक 3164 साल तक हुकूमत करने वाले खानदान के 150 अफराद में से एक भी फर्द का नाम दुनिया को याद नहीं है। अगर मैं पूछूं कि खाकान में से किसी एक का नाम बता दे, तुर्किस्तान और चीन का जो बादशाह होता था उस जमाने में उसे खाकान कहा जाता था। अगर मैं पूछूं कि उसमें से किसी एक बादशाह का नाम बता दे, शायद कोई ऐसा होगा जो बता दे। मैं अगर पूछूं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में जो किसरा था, उस किसरा का नाम क्या था, ईरान के बादशाह का लक़ब किसरा था, तो शायद कोई ऐसा हो जो बता सके। अगर मैं पूछूं कि रूम के बादशाह का नाम कोई बता दे, कैसर का नाम बता दे, कोई बताने के लिए तैयार नहीं होगा। देखिए ये जमाने तक इन्होंने हुकूमत किया, उस जमाने की सुपर पावर ताकतें थी। इनके नाम से लोगों के और सल्तनतों और बादशाहों के ऊपर लर्जा तारी हो जाया करता था, लेकिन आज दुनिया में न उनका नाम बाकी है, न उनकी तारीख भी भूली बिसरी हो गई है। बस मादूदे चंद जिन्हें तारीख से शगफ है, बस उन्हीं को नाम याद है। अगर पूछा जाए कि नज्जाशी का नाम क्या था, हबशा के बादशाह को नज्जाशी कहा जाता था, उसका असल नाम क्या था कोई नहीं बता सकता है। लेकिन मैं अगर इस भरी मस्जिद में मैं पूछूं कि हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में मस्जिद नबवी के मुअज्जिन का नाम क्या था, तो हर शख्स ये बता देगा कि बिलाल इब्न रबाह नाम था। बिलाल इब्न रबाह नाम था। देखिए जिन लोगों ने दुनिया की जिंदगी गुजारी, पुरतायुश जिंदगी गुजारी, सारी आशाइशें उनके पास थी उस जमाने के एतबार से, उनका नाम तो भूली बिसरी तारीख में चला गया है, लेकिन वो जो दामने रिसालत से लग गए हैं, आज दुनिया का बच्चा बच्चा उसका नाम जानता है। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जो फरमाया है कि मन अमिला सालिहन मिन ज़करिन औ उन्सा व हुवा मुमिनुन फलनुहयियन्नहु हयातन तय्यबा, हम उसे अच्छी जिंदगी देंगे। अच्छी जिंदगी इसे कहा जाता है। आप देखें, मैंने एक मिसाल दे करके आप लोगों को किसी तकरीर में मैंने समझाया था, चक्की का जो पार्ट होता है, नीचे का एक पार्ट होता है, एक ऊपर का पार्ट होता है, और नीचे के पार्ट में एक खूंटी लगी होती है और ऊपर के पार्ट में एक सुराख होता है। उस सुराख को खूंटी में फंसा दिया जाता है और उसी सुराख में गेहूं के या जौ के दाने डाल करके उसे घुमाया जाता है तो दाना पिस जाता है।
تو लेकिन जब आप उस ऊपर वाले पार्ट को उठाएंगे तो आपको नजर आएगा कि कुछ दाने ऐसे हैं जो दाने पिसे नहीं है, बच गए हैं, और वो दाने होते हैं जो उस खूंटी से लग करके रहते हैं, किनारे किनारे लग जाते हैं। उसी तरीके से आप मिसाल समझे, जो सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात से दामन जिसने छुड़ा लिया और अपनी जिंदगी को नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात से अलग कर दिया, वो पिस जाता है जमाने में, गुमनाम हो जाता है, मिट जाता है। लेकिन जो सरवरे कायनात के दामन रिसालत से लग जाता है, उसका नाम दुनिया में बाकी रहता है। सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन की जिंदगी देखें, हमारे असलाफ की जिंदगी को देखें, तो ये असल जिंदगी है, और इसे रब्बे कायनात ने फरमाया फलनुहयियन्नहु हयातन तय्यबा, हम उसे अच्छी जिंदगी देते हैं। इमाम कुर्तुबी अलैहि रहमत व रिज़वान ने इस आयत करीमा की तफसीर में 5 अक़वाल नकल किए। मैं सिर्फ 2 कौल नकल करूंगा, और उन 2 कौलों को भी एक दूसरे से मिला करके मैं आपको बयान करता हूं। चूंकि वक्त कम है, इसलिए कम वक्त में मैं उसे बयान कर देना चाहता हूं। इमाम कुर्तुबी फरमाते हैं कि हयात तय्यबा से मुराद एक इत्मीनान बख्श जिंदगी। कौन नहीं चाहता है कि उसकी जिंदगी में सुकून हो, लेकिन अगर आप देखें तो माल की दौलत के बावजूद भी बेचैनियां हमारा साथ नहीं छोड़ती हैं, बेचैनियां जान नहीं छोड़ती है, इज़्तिराब हमारी जिंदगी से खत्म नहीं होता है। एक अनजाना सा खौफ होता है जो इंसान की जिंदगी में हर वक्त लगा रहता है। कारोबार कहीं ठप न पड़ जाए, कहीं यहाँ पे मैंने माल लगाया है वो माल कहीं गुम न हो जाए, कहीं नुकसान न हो जाए। आदमी को एक अनजाना सा खौफ उसे लगा रहता है। लेकिन जब बंदा अपनी मर्जी को रब की मर्जी से में फना कर देता है तो अल्लाह ताला उसकी जिंदगी में इत्मीनान पैदा कर देता है। अब उसकी जिंदगी में इत्मीनान आ जाया करता है। तो हजरत इमाम कुर्तुबी ने फरमाया है कि उसकी जिंदगी में इत्मीनान और सुकून पैदा हो जाता है। हम अगर ये सोचे कि दौलत की बुनियाद पर हमें इत्मीनान मिल जाता है, हमें सुकून मिल जाता है, तो दौलत की बुनियाद पर ये चीजें हासिल नहीं होती है। ये चीजें हासिल होती है कनाअत की बुनियाद पर, और कनाअत वो दौलत है कि जिसको कनाअत की दौलत मिल जाती है उसे जिंदगी का सारा सुकून रब्बे कायनात उससे दे दिया करता है। और ये कनाअत मिलती है आमाले सालिहा की बुनियाद पर। आकाए कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये कनाअत वो दौलत है कि कनाअत अगर हासिल हो गई तो बंदे को अपने रब के हुजूर नियाजमंदी का सलीका भी आ जाता है, और आमाले सालिहा का तरीका भी बंदे को अल्लाह तबारक व तआला अता कर देता है। और ये कनाअत अगर जिंदगी से रुखसत हो गया तो सुकून भी रुखसत हो जाएगा, इज़्तिराब हमें दामनगीर हो जाएगा, बेचैनियां हमारी जिंदगी में दर आएंगी, और आदमी जो है बेचैन होकर की जिंदगी गुजारेगा, फिर उसकी जिंदगी में आपको सुकून नहीं नजर आएगा। ये कनाअत वो दौलत है कि आकाए कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है। आप देखें कि आज अगर आप अपने गिरदो पेश के ऊपर एक नजर दौड़ाएं तो वो लोग जो सिर्फ दुनिया की जिंदगी में लगे हुए हैं और जिन्हें अपने रब के हुजूर सरे नियाज खम करने की तौफीक नहीं मिलती है, आप उनकी जिंदगी में झांक करके देखें, लाखों और करोड़ों तो दूर की बात है, अरबों खरबों दौलत होने के बावजूद भी उनके नफ्स की कमीनगी नहीं जाती है, उनकी तबीयत और फितरत की कमीनगी नहीं जाती है, और वो दौलत हासिल करने के बावजूद भी लोगों की दौलत के ऊपर उनकी बुरी नजर रहती है। उसकी सबसे बेहतरीन मिसाल अगर आप देखें तो सियासी हलकों में आप नजर दौड़ा लें, आज कर के नेता वो हुकूमत का माल भी हड़प करके बैठे रहते हैं, तरह तरह के दाव पेच तदबीरें हीले बहाने मंसूबे साजिशें बनाते हैं, और वो लोगों की दौलत को जो है अपने खजाने में ला करके जमा कर देते हैं। तो ये वो चीज है जो कनाअत बंदे के अंदर से जब खत्म हो जाती है तो इंसान हरीस हो जाया करता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस में इरशाद फरमाया है, लौ कान लिइब्न आदम वादियान मिन मालिन, अगर औलाद आदम को 2 वादी भर करके माल दे दिया जाए। वादी जानते हैं, 2 पहाड़ों के दरमियान जो नशेबी इलाका होता है वो इस इलाके को जो है वादी कहा जाता है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया अगर औलाद आदम को 2 वादी भर करके माल दे दिया जाए लबतगा सालिसन, तो फिर भी वो मुतमईन नहीं होगा, क्योंकि कनाअत नहीं है, बल्कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया लबतगा सालिसन, उसकी ख्वाहिश ये होगी कि एक ऐसी ही वादी और मिल जाए। आप अपने अंदर भी गौर करके हम देखें,
एक दुकान हो जाती है तो सोचते हैं एक और हो जाए, फिर अल्लाह अल्लाह बैठ करके करेंगे। दूसरी हो जाती है तो तीसरे के चक्कर में पड़ता है, तीसरी हो जाती है चौथे के चक्कर में पड़ जाता है। मैं किसी को भी मुस्तस्ना नहीं कर रहा हूं, मैं अपने आप को भी मुस्तस्ना नहीं कर रहा हूं। ये ख्वाहिशें इंसान के दिल में ये रहती है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया अगर 2 वादी भर करके माल दे दिया जाए तो वो चाहेगा कि एक तीसरी जो है वादी ऐसे उसे और मिल जाए। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है वमा यमलअ जौफ इब्न आदम इल्ला तुराब, इंसान की आरज़ुएं, उसकी उम्मीदें, उसकी लालच, उसकी हिर्स व हवस ये उस वक्त खत्म होगी जब वो इस दुनिया से रुखसत हो जाएगा। अल्लाह के रसूल ने फरमाया इंसान का पेट मिट्टी ही भर सकती है, यानी जब मर करके मिट्टी के नीचे दब जाएगा तो उसके मरने के साथ उसकी आरज़ुएं मरेंगी। हम देखते हैं कितने ऐसे बूढ़े होते हैं जिसमें न मुंह में दांत है, न पेट में आंत है, न चलने की सकत है, लेकिन दौलत से इस कदर प्यार है कि अल्लाह की पनाह। तो इंसान के अंदर फितरी तौर पर यह है, और इसी चीज को अल्लामा रूमी ने इसी मफहूम को अपने शेर में पिरोया और कहा है कि कूज़े चश्मे हरीसा पुरनशुद, कूज़े चश्मे हरीसा पुरनशुद ता सदफ ताने नशुद बुलदुर नशुद, कि एक लालची इंसान की आंखों का प्याला कभी नहीं भरता है। लोगों का पेट भर जाता है, लालची आदमी का पेट तो भर जाता है लेकिन उसकी आंख नहीं भरती। कहते हैं ना कि उसकी आंखों में भूख है, यानी पेट भर गया है, पेट में जगह नहीं है लेकिन आंखें अब भी उसकी भूखी रहती हैं, आरजुएं मचलती हैं, तमन्नाएं उसकी जो है उसके दिल में रहती हैं, आरजुएं उसकी दराज होती चली जाती हैं, उम्मीदें लंबी होती चली जाती हैं। इंसान के अंदर ये फितरी तौर पर है। लेकिन जब कनाअत बंदे के अंदर आ जाता है तो अल्लाह तबारक व तआला उसकी जिंदगी में सुकून दे देता है। वो सुकून कैसे मिलता है? हम अगर किसी की जिंदगी को देखते हैं, अल्लाह ने उसे दौलत दिया है, उसे जिंदगी की हर आशाइश दिया है, हमारे दिल में एक ख्वाहिश पैदा होती है, एक आरजू मचलती है कि हमें भी वो जिंदगी अता हो जाए, हमें भी इसी तरीके की जिंदगी मिल जाए। बाज ऐसे होते हैं जो हसद के तौर पे कहते हैं उसकी ये जिंदगी खत्म हो जाए, उसकी दौलत मेरे पास आ जाए, आदमी की ये ख्वाहिश हुआ करती है। लेकिन जब कनाअत उसके अंदर पैदा हो जाए तो उसके पहलू में बैठा हुआ इंसान सर से लेकर के पांव तक अगर जवाहरात में वो डूबा हुआ है, उसकी चमचमाती हुई कारें हैं, उसकी इतनी प्रॉपर्टी है कि उंगलियां खत्म हो जाए, प्रॉपर्टी उसकी शुमार में ना आए, इतनी दौलत है कि खुद उसे पता नहीं, लेकिन पहलू में बैठा हुआ एक कनाअत पसंद इंसान, उसकी जिंदगी के ऊपर कुछ फर्क नहीं पड़ता है। अल्लाह ने उसे दौलत दिया है, उसका हिस्सा था, उसका मकसूम था, रब ने उसे दिया है। मेरी तकदीर में, मेरी किस्मत में जो रिस्क था वो तो मुझे मिल रहा है। अब जब ये चीज इंसान के अंदर पैदा हो जाती है तो उसके अंदर अल्लाह तबारक व तआला सुकून पैदा कर देता है। किसी बुजुर्ग से पूछा गया था कि गम किसे कहा जाता है, तो उन्होंने कहा था कि गम कहते हैं अपनी मर्जी और अल्लाह की मर्जी के दरमियान फर्क करने का नाम गम है। कि हम बंदा ये चाहता है कि हमें दौलत मिल जाए, हमें दुनिया की आशाइश मिल जाए, हमें इतनी दौलत मिल जाए कि हर फैसला मैं जब चाहूं, जिस तरह चाहूं, जैसे चाहूं मैं वो फैसला कर लूं, जहां चाहूं, जब चाहूं, जिस तरह चाहूं मैं सफर कर जाऊं। वो ये सोचता है कि मुझे ये दौलत मिल जाए। रब कायनात की मर्जी क्या है? रब की मर्जी है कि नहीं, इस बंदे को रिस्क कफाफ दिया जाए, यानी हस्बे जरूरत इसे रिस्क दिया जाए। तो अल्लाह की मर्जी ये है कि इसे इतना रिस्क दिया जाए, और वो चाहता है कि मुझे जो है दुनिया भर करके दौलत मिल जाए। अब वो अपनी मर्जी पूरी करने के लिए वो छलांगे लगाता है, दुनिया में छल कपट करता है, नीच ऊंच की बातें वो करता है, वो अंडर द टेबल का मुआमला करता है, और फिर रिश्वत सतानी, चोर बाजारी वो गर्म करता है, लोगों का माल दबा करके बैठ जाता है, कर्जा लेकर के वो छुप जाया करता है, और इस तरीके से उसकी जिंदगी में एक इस्तिराब पैदा होता है। दौलत होते हुए भी उसकी जिंदगी में सुकून नहीं आता है। लेकिन वही बंदा अगर रब के हुजूर हाथ उठा करके ये कह दे, मौला तू मेरा मालिक हकीकी है, तू राज़ी के हकीकी है और मैं तेरा बंदा हूं, तूने मेरी तकदीर में जितना रिस्क लिख दिया है, जितना रिस्क तूने मुझे अता किया, मैं उसी के ऊपर राजी हूं, अब उसकी जिंदगी में इस्तिराब खत्म हो जाता है।
तो बंदा अपनी मर्जी को जब चलाने लगता है और रब की मर्जी को भूल जाता है तो ऐसी सूरत में उसकी जिंदगी में गम लायक होता है, क्योंकि उसकी मर्जी जब पूरी नहीं होती है गम लायक होता है, फिक्र दामनगीर होती है, वो आदमी परेशान होता है, ज़हनी टेंशन और उलझन में वो पड़ जाया करता है। लेकिन अल्लाह की मर्जी में अगर अपनी मर्जी को वो फना कर देता है तो फिर तो वो रब तबारक व तआला की तकदीर के ऊपर राजी हो जाता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी की वसीयत करते हुए हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से फरमाया था, वर्द बिमा कसम अल्लाहु लक तकुन अगनन नास, अल्लाह की तकसीम पर राजी हो जा तो दुनिया में लोगों से सबसे ज्यादा बेनियाज हो जाएगा। गिना जो दिल का गिना होता है, गिना का मतलब दौलतमंदी नहीं, गिना का मतलब दिल की गिना और दिल की मालदारी होती है कि आदमी का दिल बड़ा हो जाए। तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया तुम अल्लाह की तकसीम पर राजी हो जाओ, तेरा दिल दुनिया वालों से सबसे बड़ा हो जाएगा और अल्लाह ताला तेरे दिल में इतना गिना डाल देगा कि फिर दुनिया का करोड़पति, लाखपति और सबसे ज्यादा दौलतमंद इंसान भी सामने खड़ा होगा, तेरे दिल में कोई आरज़ू नहीं मचलेगी, तू अपने रिस्क के ऊपर मुतमईन रहेगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को वसीयत करते हुए ये फरमाया था। और एक रिवायत अल्लामा इब्न अबी दुनिया ने नकल किया है, वो रिवायत बड़ी खूबसूरत है। बंदा अगर अल्लाह की तकदीर पर राजी न हो, अपनी मर्जी चलाए तो होगा तो वही जो रब्बे कायनात चाहेगा, हमारी मर्जी तो नहीं चलने वाली। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया है कि वमा तशाऊना इल्ला यशा अल्लाह रब्बुल आलमीन, तुम्हारे चाहने से क्या होता है, होता तो वो है जो रब्बुल आलमीन चाहता है, तो होना तो वही है जो रब चाहे। तो हमें तो ये हमारी मजबूरी है कि हम अल्लाह तबारक व तआला की तकसीम के ऊपर राजी हो जाएं। अगर हम ये नहीं करेंगे तो फिर जो है कुछ कर भी तो नहीं सकते हैं। हम लाख उतार चढ़ाव करें, हम 2 का 4 करें, हम इधर गोटी फिट करें, उधर गोटी फिट करें, लेकिन होगा तो वही जो रब्बे कायनात चाहेगा। अल्लामा इब्न अबी दुनिया ने एक रिवायत नकल किया है, फरमाते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने औलाद आदम से फरमाया कि यब्न आदम खलक़तुका लिल इबादति फला तलअब, ऐ औलाद आदम मैंने तुझे अपनी इबादत के लिए पैदा किया है, इसलिए खेल कूद में अपनी जिंदगी को मत गुजार और अपने वक्त को जाया मत कर। और वक़समतु रिज़्क़का फला ततअब, मैंने तेरा रिस्क मुकद्दर कर दिया है। इंसान जब माँ के शिकम में जब उसका नुत्फा करार पाता है तो उसमें जान डालने से पहले 120 दिन गुजरने से पहले एक फरिश्ता आता है और वो फरिश्ता आने के बाद 4 चीजें लिखता है कि ये बंदा कब पैदा होगा, इसकी उम्र क्या होगी और इसका रिस्क क्या होगा और ये कब मरेगा, इसके आमाल कैसे हैं। ये 4 चीजें उसकी लिख देता है, उसकी उम्र क्या होगी, उसका रिस्क क्या होगा, उसके आमाल क्या होंगे, वो कब मरेगा, ये 4 चीजें वो फरिश्ता लिखता है। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं ये लिखने के बाद वो फरिश्ता उसमें रूह डालता है, फिर वो फरिश्ता जाता है। यानी हमारे जिस्म में रूह पड़ने से पहले हमारी तकदीर में लिखा जा चुका है कि हमारा रिस्क क्या होगा। जब दुनिया में आने से पहले लिखा जा चुका है तो फिर उस रिस्क के लिए परेशान होने की जरूरत क्या है। हाँ, अपनी ताकत के मुताबिक आदमी तदबीरें करे, लेकिन उस रिस्क को हासिल करने के लिए जान को जोखिम में डाल देना, ईमान को किसी के हवाले कर देना, ये तो जो है एक बंदे मोमिन की शान नहीं है। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया कसम तो लगा रिस्क का, तेरा रिस्क मैंने मुकद्दर कर दिया, फला ततअब, अपनी जान को जोखिम में मत डालो उस रिस्क को हासिल करने के लिए। आपने देखा है कभी महफिल मीलाद के इख्तिताम के ऊपर जो है, इख्तिताम पर जब तबर्रुकात बढ़ते हैं तो कुछ ऐसे होते हैं जो टूट पड़ते हैं तबर्रुक के ऊपर। ऐसे तो बूढ़े बूढ़े लोगों को टूटते हुए मैंने देखा है, वो टूट पड़ते हैं उसके ऊपर, एक ननखटाई एक खाजे के लिए वो अपनी इज्जत को दाव पर लगा दिया करते हैं। और कुछ को तो ऐसे देखा है जो हाथ क्रॉस करके यूं करते हैं, 2 हाथ रहेगा 2 मिल जाएगा। एक छोटी सी चीज है, बहुत मामूली सी चीज है, उसके लिए आदमी रुसवा होता है। लेकिन आपको ऐसे लोग भी नजर आएंगे जो कहीं मस्जिद के किसी कोने में दीवार से टेक लगाकर इत्मीनान से बैठे होते हैं, उन्हें भी उनका हिस्सा मिल जाता है।
उन्हें भी उनका हिस्सा मिला। जिन्होंने अपनी इज्जत को दांव पर लगा करके लूट मार मचाई, उन्हें भी उनका हिस्सा मिला। और जिन्होंने कोने में बैठ करके अल्लाह तबारक व तआला की तक़सीम पर वो राजी रहे, उन्हें भी उनका हिस्सा मिला। तो अल्लाह तबारक व तआला की तक़सीम पर राजी रहना, ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाया। और अल्लाह तबारक व तआला ने भी फरमाया, फला ततअब, तुम अपनी जान को जोखिम में मत डालो। और फिर रब्बे कायनात फरमाता है, व इन अंत रदीत बिमा क़समतुहु लक, मेरी तक़सीम के ऊपर अगर तू राजी है, मेरे दिए हुए रिस्क के ऊपर तू राजी है, तो अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, अरहतु क़ल्बक व बदनक व कुन्त इंदी महमूदन, मैं तेरे बदन को भी आराम पहुंचा दूंगा, तेरे दिल को भी राहत पहुंचाऊंगा, और तू मेरे नजदीक महबूब और प्यारा भी रहेगा। कितनी खूबसूरत बात है, बदन को भी आराम, रूह को भी आराम, दिल को भी राहत मिल जाए, और रब्बे कायनात का महबूब बंदा भी वो बन जाए। और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया, वइल्लम तर्दा, और अगर तूने मेरी तक़सीम पे तू राजी नहीं हुआ, तो अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, फवइज्जती व जलाली लउसल्लितन्न अलैका दुनिया, तो मैं अपने इज्जत व जलाल की कसम उठा करके कहता हूँ, मैं दुनिया को तेरे ऊपर इस तरह मुसल्लत कर दूंगा कि तरकदु फिल बरियत रकदल वहूश, जिस तरीके से एक चटियल मैदान में, बयाबान में जानवर दौड़ता है, यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ, कुछ हासिल नहीं होता है, उसी तरीके से दुनिया में तू इस दर से उस दर पे, उस दर से उस दर पे जलीलो ख्वार होगा, भटकता रहेगा, और इन तमाम जिल्लत और रुसवाई के बाद मिलेगा वही जो मैंने तेरी तकदीर में लिख दिया है, मिलना वही है जो मैंने तेरी तकदीर में लिख दिया है। तो ये कनाअत बंदे के अंदर पैदा हो जाए, तो रब फरमाता है, फलनुहयियन्नहु हयातन तय्यबा, हम उसे अच्छी जिंदगी अता कर देते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस कुदसी अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया है, यब्न आदम तफर्रक लिइबादती, आए औलाद आदम, मेरी इबादत के लिए वक्त निकाल, मैंने तुझे इबादत के लिए पैदा किया है, मेरी इबादत के लिए वक्त निकाल। और उसका नतीजा क्या सामने आ रहा है, रब्बे कायनात ने फरमाया, तफर्रक लिइबादती, मेरी इबादत के लिए वक्त निकाल, असुद्दु फक़रक व अमला सदरक, मैं तेरे सीने में गिना पैदा कर दूंगा, मालदारी पैदा कर दूंगा, बेनियाजी पैदा कर दूंगा, दिल को इत्मीनान और सुकून अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है मैं अता कर दूंगा, तेरी मोहताजगी भी मैं दूर कर दूंगा। व इल्ला तफ़अल, और अगर तू इस बात पर अमल नहीं करता है तो जो चाहे कर, अमला मला तो यदई का शुगलन, मैं तेरे हाथ में दुनिया का इतना काम भर दूंगा कि तुझे मेरी बारगाह में आने की फुर्सत ही नहीं मिलेगी। दिन भर तू थकेगा, दिन भर तू खटेगा, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता है, वला मसुद्द फ़क़रक, लेकिन तेरी मोहताजगी भी दूर नहीं होगी। तो जो अच्छी जिंदगी और सुथरी जिंदगी रब्बे कायनात ने फरमाया वो यही जिंदगी है कि आदमी अपने अंदर कनाअत पैदा करे, रब की रजा में अपनी रजा को गुम कर दे, तो अल्लाह तबारक व तआला उसे अच्छी और सुथरी जिंदगी अता करता है। हमने ऐसे लोगों को देखा है जिन्होंने अमले साले किया, और अमले साले करके वो जब इस दुनिया से गए हैं तो दुनिया से मुस्कुराते हुए चले गए हैं। और आकाए कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस में फरमाया है, मेरी उम्मत में एक ऐसा फर्द होगा जो मरने के बाद भी लोगों से गुफ्तगू करेगा। एक ताबई गुजरे हैं हजरत रबी इब्ने हराश, इनके एक भाई थे रबई इब्ने हराश, और दो भाई थे, ये चार भाई थे, जो खास तौर से मैं इनका जिक्र करूंगा, रबई इब्ने हराश और एक रबी इब्ने हराश। दोनों हजरात का वाकया सुने। रबई इब्ने हराश ने, इन्होंने कसम उठा रखी थी कि जब तक मैं जन्नत में अपना मकाम देख नहीं लूंगा मैं मुस्कुराऊंगा नहीं। पूरी जिंदगी इन्होंने कभी नहीं मुस्कुराया। इंतहाई परहेजगार, इंतहाई नेकोकार थे, ताबई थे। हजरत उमर इब्ने खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हजरत मौलाए कायनात हजरत अब्दुल्लाह इब्ने मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जैसे सहाबी से इन्होंने रिवायतें ली हैं, और इनसे लेने वालों में हजरत सुफियान सौरी अपने जमाने के जय्यद मुहद्दिसीन और फुक़हा गुजरे, हजरत रबई इब्ने हराश रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से। लेकिन जब इनके विसाल हुआ तो इनके घर वालों ने बुलाया, और बुला करके जो है इनको गस्साल को बुलाया, गुस्ल देने वालों को। जब गुस्ल देने वाला अंदर गया तो थोड़ी ही देर में वापस चला आया। तो गुस्ल देने वाला जब अंदर से वापस आया तो कहा, इतनी जल्दी गुस्ल दे दिया? कहा नहीं, बड़ी अजीब बात है यार, तुम्हारा भाई, मैं गुस्ल दे रहा हूँ, तुम्हारा भाई मुस्कुराए जा रहा है, तुम्हारा भाई मुस्कुराए जा रहा है।
तो उनके घर वालों ने कहा था कि लगता है उन्होंने आखिरत में जन्नत में अपना मकाम देख लिया। उन्होंने कसम उठा रखी थी कि जब तक मैं जन्नत में अपना मकाम देख नहीं लूंगा मैं मुस्कुराऊंगा नहीं। आज जन्नत में उन्होंने अपना मकाम देख लिया है, आज मुस्कुराए जा रहे हैं। आकाए कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इनके भाई है रबी इब्न हिराश। डॉक्टर इकबाल ने कहा था कि निशाने मर्द मोमिन बातु गोयम, निशाने मर्द मोमिन बातु गोयम, चू मर गायब तबस्सुम बदल बेहोश। मैं तुझे बताता हूँ कि मर्द मोमिन की अलामत और निशानी क्या है। जब मौत आती है तो उसके होठों के ऊपर तबस्सुम और उस होठों पर मुस्कुराहटें खेल जाती है। तो उन्होंने जब आखिरत में अपना मकाम देखा मुस्कुराए जा रहे। क्यों? उन्होंने इताअत खुदाबंदी में जिंदगी गुजारी, अल्लाह ने उसे अच्छी जिंदगी दी। आखिरत की जिंदगी की ये बात मैं करूं, दुनिया की जिंदगी तो यूं गुजरी, आखिरत की जिंदगी के लिए एक हदीस में सुना दूं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हज़रत मौलाए कायनात से हदीस मरवी है, मन रदिया मिनल्लाहि बिल कलील मिनर रिज़्क़ रदियल्लाहु बिल कलील मिनल अमल, कि जो बंदा अल्लाह के दिए हुए थोड़े रिस्क पर राजी हो जाता है तो अल्लाह तबारक व तआला क़यामत के दिन उसके थोड़े अमल के ऊपर राजी हो जाएगा। ये कितनी बड़ी बात है कि आदमी के थोड़े अमल के ऊपर, बंदे को तो जरूरत थी दुनिया में, लेकिन फिर भी वो जो है अपनी जरूरतों को छोड़ करके अल्लाह की तकदीर पर राजी हो गया। अल्लाह को तो आखिरत में इंसान के अमल की जरूरत भी नहीं है, अल्लाह तबारक व तआला उसके थोड़े अमल के ऊपर राजी हो जाता है। हज़रत रबी इब्न हिराश, जब इनका इंतकाल हुआ तो ये ऐलान हुआ, अब इनका इंतकाल हुआ तो इनके पास इतनी दौलत नहीं थी, इतना पैसा नहीं था कि इनके कफन का इंतजाम हो सके। बाकायदा ऐलान किया गया कि मैं यब्ता और कफनी, इसके कफन का पैसा कौन देगा, कौन खरीदेगा इसके कफन। इतने में इन्होंने अपनी चादर से हाथ निकाला, अपना चादर हटाई और हटाकर अस्सलामु अलैकुम इन्होंने सलाम किया। तो लोगों ने कहा वाह ताज्जुब की बात है, कहा अबादल मौत, मौत के बाद भी आप कलाम करते हैं? कहा हाँ, मौत के बाद भी मैंने कलाम किया है। और कहते हैं लकी तो बादकुम रब्बी, मैंने तुम्हारे बाद तुमसे जब मैं छूटा हूँ मैंने अपने रब से मुलाकात किया है। लकी तो रब्बी गैर गज़बान वस्तक़बलनी रब्बी बिरौहिन व रैहान वस्तबरकिन, कि मैं अपने रब से इस हाल में मिला हूँ कि मेरा रब मुझसे राजी था, मैं इस हाल में मिला हूं कि मेरा रब मुझसे राजी था। उसने जन्नत के फूलों का हार मुझे पहनाया और इस्तबरक का लिबास मुझे पहनाया। और फिर उन्होंने कहा अला सुनो कि अबुल कासिम मेरे जनाजे का इंतजार कर रहे हैं, जल्दी करो, नहला धुला करके मुझे जो है जनाजे में ले करके जाओ, जनाजा पढ़ करके मुझे दफन करें। बंदे मोमिन जो अल्लाह की तक़सीम पर राजी रहता है, जो नेक लोग होते हैं, जब वो मौत का शिद्दत से इंतजार करते हैं, वक्त थोड़ा सा बच रहा है लेकिन मैं ये बात पूरी कर लूं, वो शिद्दत से इंतजार करते हैं। जो गुनहगार बंदा होता है वो मौत से भागता है, वो डरता है कि मैं मर जाऊंगा तो आखिरत में क्या होगा। लेकिन जिसकी जिंदगी में नेकियां ही नेकी होती है तो फिर वो अपने रब से मुलाकात का ख्वाहिशमंद होता है। अल्लामा रूमी अलैहि रहमत व रिज़वान ने एक मिसाल से उसे समझाया है, मैं वो मिसाल जिक्र करके गुफ्तगू खत्म करूं। एक बस्ती थी, उस बस्ती के लोगों का उसूल और ज़ाब्ता ये था कि वो हर साल अपना बादशाह बदलते थे। जब साल पूरा हो जाता था पुराने बादशाह को पकड़ते थे, ले आके जंगल में छोड़ देते। वो जंगल के दरिंदों की खुराक बन जाता था, कीड़े मकोड़ों की खुराक बन जाता था। और फिर साहिले दरिया के ऊपर आते, जो पहला इंसान उन्हें साहिले दरिया पर मिलता उसी को अपना बादशाह बना लेते और उसे सारी शराइत बता दिया करते थे, साल भर के लिए हम तुझे अपना बादशाह बना रहे हैं और साल भर के बाद तुझे फलां जंगल में छोड़ दिया जाएगा। तो बंदा ये सोचता था कि साल भर तो है, साल भर में कम से कम ऐशो इशरत कर ले। वो जब तख्ते शाही पर बैठता था तो वो इस कदर ऐशो इशरत में डूब जाता था और शाहाना नेमतों में डूब जाता था कि उससे वक्त का एहसास ही नहीं होता था और साल कैसे गुजर गया एहसास नहीं होता था। एक मरतबा ऐसा हुआ जब इन लोगों ने अपने बादशाह की तलाश के लिए साहिल दरिया पर आए, एक कोई अल्लाह वाला आया और उसके सामने उन्होंने पेशकश की। उसने कहा नहीं नहीं, मुझे बादशाहत नहीं चाहिए, मुझे फकीरी की जिंदगी अच्छी है। उन लोगों ने कहा तू मान चाहे ना मान, वो कहावत है ना कि मान चाहे मत मान, तू मेरा मेहमान। उन्होंने पकड़ के कहा कि तू हमारा बादशाह है
हमने ये उसूल बना रखा है, जो पहला इंसान आएगा हम उसे बादशाह बनाएंगे, पकड़ा ले जाकर के उसे तख्ते शाही पर बिठा दिया। तो उसने कहा कि अच्छा ये बताओ मुझे इख्तियारात क्या क्या होंगे। उसने कहा इख्तियारात का मतलब ये है कि कानून तो तू नहीं बदल सकता है, जो कानून है वो कानून वही रहेगा, अलबत्ता हम तुम्हारे हुक्म के फरमाबरदार, तू जो हमसे कहेगा हम करेंगे। उसने कहा ठीक है अगर बात ऐसी है तो। तख्ते शाही पर बैठते हुए पहला फरमान उनसे जारी किया, फलां जंगल में आदमी कारिंदे को बुलाया जाए, मजदूरों को बुलाया जाए, बुला करके कहा फलां जंगल में जाओ, सारे खारदार दरख्तों को काट दो, वहां के जितने भी दरिंदे हैं और जितने भी कीड़े मकोड़े हैं सबको खत्म कर दिया जाए, साफ सुथरा चमनजार उसे बना दिया जाए। जब बन गया, दरख्त कट गए, का एक महल की तामीर की जाए। महल तामीर हो गया, चमनिस्तान वहां पे आबाद कर दिया गया। अब उस जंगल को इसने जन्नत नुमा मकान बना दिया है। अब जब साल गुजरा है, अब जब साल आया है और इसे उस जंगल में भेजने की बारी आई, तो ये कह रहा है तुम क्या लेकर के जाओ, मैं तो खुद ही जाने के लिए तैयार हूं, क्योंकि मैंने उस जंगल को चमनिस्तान बना दिया है, मैंने उस जंगल को जो है बाग बना दिया है। अब उस जंगल में जाने से कौन डर सकता है। उसी तरीके से इंसान इस दुनिया में आता है, एक महदूद जिंदगी लेकर के आता है, अब वो दुनिया की जिंदगी में खो जाता है, वक्त का एहसास नहीं होता है, कब जिंदगी की शाम हो गई और उसे कब्र के अधूरे में दबा दिया जाता है। लेकिन अगर वो इस वक्त का एहसास करता है और आने वाली जिंदगी के लिए वो तैयारी करता है और अपने कब्र को वो चमनिस्तान जन्नत बना दिया करता है, तो फिर जब मौत का वक्त करीब आता है तो फिर उसकी ख्वाहिश होती है कि जल्द से जल्द मुझे लेकर के जाया जाए। तो यही मिसाल अल्लामा रूमी ने हमें दिया है। हमें भी चाहिए कि अपनी जिंदगी को अच्छी और सुथरी बनाने के लिए हमें इन्हीं उसूलों के ऊपर अमल की जरूरत है। अल्लाह ताला मुझे और आपको इस पर अमल की तौफीक अता फरमाए।